A very good morning to everyone and welcome to the Uthan session today. So today we're doing the session on the topic which is how future is linked with our past and current actions. And today is the fourth session. We have Sangeeta Didi already joined us. Didi, welcome and Om Shanti, and over to you. Om Shanti. Good morning, all of you. A very warm welcome, and all the angels are welcome again to understand my ishara. Sub angels आ गए हैं. Yes, ready, sub angels. So it's good to, and I think so. It was very pleasant also, and interesting also to understand the present being linked with the past and future. So I'm sure most of the queries must be clear about it. So everything is being linked. चाहे वो whatever we are. So when I say the present is linked, means whatever energy I am creating by way of thoughts, by way of words, or by way of actions, every energy is linked. In the sense कि जो भी एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ वो मेरा फ्यूचर फॉर्च्यून बना रही है, या जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी बना रही है. सो वी हैड मेनी टाइम्स अंडरस्टूड द एग्जाम्पल दैट whatever table I have kept here, the moment I kept the table here and I went off in the office that night and I kept the table in between, और जब मैं चली गई तो मैंने उसी दिन क्या लिख दिया कि whenever I'll come the next day, I will be hit by it. मुझे इस टेबल की लगने ही वाली है. वो फ्यूचर मैंने कब लिख दिया? वो फ्यूचर मैंने कब लिखा? जिस दिन मैंने टेबल रख दिया. तो सपोज आई क्रिएट एनर्जी, आई क्रिएट थॉट्स. क्या है, इनको कुछ ठीक से बैठना नहीं आता है, ये तो ऐसे ही है, कभी सुनने वाले नहीं है. सो आई एम क्रिएटिंग दिस थॉट्स, आई एम क्रिएटिंग एन एक्शन. Action doesn't mean when it is done by hands. Any energy is an action. तो उसी दिन if I've created these thoughts for that person, I have written my future. Like I and the table were in the picture of that scene. So I and the table were again involved the next day. So if I and you are involved in a scene, I'm creating for you. तुम ऐसे हो, तुमको समझ में नहीं आता है, कितना बोलते हैं. And vice versa. It could be very pleasant thoughts also. You're so good, you're so sincere, you're so honest, you're so helpful. When I've created any kind of this energy, I've written my future. कि आप मेरे लिए, मतलब मेरा फ्यूचर ब्राइट है. अच्छा, फिर भी आप करेंगे. सपोज वी वुड से मैं तो करती रही हूँ. I never thought wrong of anybody, but I don't know why she's getting influenced by others. See, whatever I create, it is my future. And there are two things involved in a past and present future. One is something coming from the past because of which the thoughts are being created. And in some present energy, the fortune is made. तो दोनों बातें हैं, आ भी रहा है, सेटल भी हो रहा है, नई भी बना रहे हैं. लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है समझना? सेटल होना समझना, बिकॉज
हमें अगर हम करते जा रहे हैं, from my side I'm always pleasing, I'm always loving, I never think anything wrong about you, so I'm always doing it. But I don't know why you are so much so influenced by the people around you and you are still going on doing with me. So if what I am doing, I'm creating my future. In other words, because what I'm doing, it's a settlement, and still आप वैसे भी करते जा रहे हो, तो मेरा सेटल हो रहा है आपके साथ. जैसे सेटल होता है तो क्या होता है, 10,000 लेना होता है, तो मुझे यहाँ से क्या करना होता है, 10,000 देना चाहिए. तो इसलिए कुछ आपका ऐसा अकाउंट था जो मैंने किया था, और इस कारण you don't have good feelings for me. You easily come under the influence of people who are negative for me. Fine. But maybe because in spite of I doing it, आपका वैसे ही आ रहा है, तो मेरा तो सेटल हो रहा है ना, अगर है तो. And the most suspicious part of this past and future is we don't know our opening balances. So therefore I don't know how much is my loss and how many people I have to give or how many people I have to get. मुझे कुछ पता ही नहीं है. And that is the beauty of the game. अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी, बिकॉज सेफर साइड क्या है, सेफर साइड है कि मैं अपने तरफ से बेस्ट टू बेस्ट करती जाऊं, बिकॉज आई जस्ट डोंट नो, इवन इफ इट इज पास्ट इट्स गेटिंग सेटल्ड, even if it is not the past, I'm creating the future, uh, and I'm still doing it. I'm creating a better future. किसी भी वे से मुझे सेटल तो वैसे भी करना पड़ेगा ना. बैलेंस शीट टैली कब होगी, जब वो सेटल करेंगे तब, नहीं तो वो टैली नहीं होगी. तो इसलिए आई हैव टू जस्ट इन केस, और वैसे भी किसी के साथ भी कोई भी बैलेंस शीट में जितने कम अकाउंट्स हो अच्छा है, कि लाइबिलिटी साइड बहुत बड़े हो लाइबिलिटीज, अच्छा नहीं लगेगा ना. फाइनेंस पीपल आर हियर, if there are so many accounts in your liability side, so many debtors, creditors, then it is a big wrong impression for the company. तो इसलिए अगर मैं बेस्ट करती जाऊं तो मेरा सेटल होता जा रहा है, एंड सेटल होना भी मेरे लिए पॉजिटिविटी है, बिकॉज एनीवेज आई हैव टू सेटल इट. It could be anyways, and by my best doing. And secondly, I'm creating a new future. So, and thirdly, sometimes no, therefore in settling, one is I create always a beautiful future, I create always positive energy, and second is in spite of it I'm feeling ki I don't know why this is negative, then there could be some strong difficult bonding of the past. I remember in Assam हमारे हमारा ग्रुप गया था. So the sister told that there is one contact person कि वो बहुत मतलब वो घर में बहुत परेशानी है, and they asked कि आप आओ सेंटर पे, because the sisters have come from far away. तो उनको बुलाया. तो फैमिली पीपल टोल्ड दैट जो घर की लेडी थी, मतलब मदर ऑफ दैट, तो उनको ना बहुत डिप्रेशन है, 4th स्टेज ऑफ डिप्रेशन है, एंड उनको जैसे ही वो उठती है वो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करने लगती है. तो भी हम इंजेक्शन देके उनको सुलाते हैं, और रोज रात को 6 स्लीपिंग पिल्स लेती है, तब कोई नींद आती है.
severe depression case है, and since last 11 years, and as such she is a very good lecturer. Earlier she was a very good lecturer. तो फिर उनको हमने सोचा कि बोला कि उनको बोलो कि मिले उनको, पर वो आने को रेडी नहीं थी, तो एनीवेज उनको मनाया. देन शी केम टू द सेंटर. अब आ तो गई, वो खाली देखे ऐसे वैसे, बिकॉज शी फेल्ट कि मुझे क्यों लेके आए, आई डोंट वांट टू गेट ट्रीटेड. शी वाज वेरी मच अगेंस्ट हर लाइफ ऑल्सो. मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है, मुझे कुछ जीना नहीं है दैट वे. तो फिर बाद में उनको हमारे जो सीनियर ब्रदर है, तो अच्छे से उसको पूछा क्या है, तो जवाब तो ठीक से दे नहीं रही थी. धीरे धीरे प्यार प्यार से उसको लेके गए, एंड फाइनली द एम वाज टू ब्रिंग हर 11 years ago क्या हो रहा. तो फिर उसने धीरे धीरे, फिर बाद में जब थोड़ा ठीक हुआ, स्टेबल हुई, तब उसने बताया कि 11 साल पहले मेरे मुझे ऑलरेडी 3 डॉटर्स है और बच्चा जन्मा. जब वो 6-7 महीने का गर्भ में था तब से मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आने लगी, बहुत ही इरिटेशन होने लगा, और मुझे बिल्कुल जैसे ना उससे अच्छा ही नहीं लग रहा था. अब खैर वो बच्चा फिर जन्मा और उस बच्चे को लेके आए फर्स्ट टाइम टू द मदर. उसने कहा जैसे ही मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि जैसे उसका मेरा हाथ उसके गले पर गया कि मार दूं उसको. और तुरंत फिर तो फैमिली मेंबर्स ने उसको उठाया और लेके गए. अब सोचो, अभी आधा घंटा हुआ नहीं, दैट चाइल्ड हैज जस्ट कम इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ही इज मीटिंग द फेट फ्रॉम हिज ओन मदर. क्या होगा ये, इतना प्रेजेंट, इतना इतना डरावना कैसे है. तो फिर और फिर बाद में उसको, और बोला मैं जब भी उसको देखती थी मुझे यही फीलिंग होता था कि इसको मार दूं. बहुत ही नेगेटिव फीलिंग होता था, एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, बिकॉज इतनी नेगेटिव फीलिंग्स. और सब लोग जैसे ट्राई करते थे कि जल्दी मिले नहीं है, पहचान गए थे फैमिली मेंबर्स, एंड एवरीवन ऑब्वियसली वो वेरी मच. घर में सब जगह खुशियां थी, बिकॉज आफ्टर 3 daughters the son was born. Everyone is so happy, and one ought to be happy in this kind of situation, but she was almost different for her. And thereafter बच्चा तो ग्रो होने लगा, और लेकिन अब ये सीवियर डिप्रेशन में जाने लगी, जॉब छोड़ दी, और बहुत रॉन्ग रॉन्ग ख्याल आने लगे, कुछ कहीं मन नहीं लगा, एंड दैट इज हाउ 11 years पास हो गए. तो फिर हम लोगों ने कहा कि आप एक काम करो, कि जो वो बच्चा है उसके हस्बैंड को बुलाया कि आप एक काम कर सकते हो, बच्चे को सिखाओ कुछ दिन के लिए, मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ करो. अंदर जब वो चुप, मतलब वो अकेले में हो, कभी भी हो, वो अंदर से जैसे ना उसे माफी मंगवाओ. बेशक मदर के सामने नहीं, लेकिन जस्ट ऐसे ही उसको सिखाओ. अब बेचारा 11 साल का बच्चा है, करने लगा. और फिर मदर को बोला कि आप रात को ऑलवेज हाथ रखो उसके, और ये प्रैक्टिस करो कि मैं बहुत सॉरी हूँ, जो भी हुआ जैसे भी हुआ माफ कर दो, उसको माफ करो, फॉरगिव करो. और उसको सिखाया आप फॉरगिव लो, और ऐसे करके 5 days कराया. 5 days के बाद पहली रात थी, उसको विदाउट एनी स्लीपिंग पिल नींद आ गई.
और ऐसे करते करते 21 डेज तक किया, तब तक मतलब सारा टाइम फॉरगिवनेस, आई एम वेरी सॉरी दोनों का। और 21 डेज के बाद उसकी पूरी थॉट, एकदम वायलेंट थॉट निकल गई एंड ऑलमोस्ट नॉर्मल टाइप हो गई। उसने कहा 11 साल 11 डॉक्टर्स पता नहीं चेंज किया, कितने सारे 11 पिल्स रोज लेते थे, तो भी ये डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, और ये 4 दिन की दवाई ने इसको ठीक कर दिया। क्या इलाज है इसका? मेरे कोई भी पास्ट और फ्यूचर का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू माय माइंड। तो वो सोल के साथ कुछ वायलेंट 6 महीने का बच्चा और उसको अभी से ही उसको ये फेस करना पड़ रहा है। मीन्स क्या था, अभी तो वो आया ही है, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग रही होगी ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट, और बिकॉज ऑफ विच ओपनिंग होते ही ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला। तो दिस इज द रीजन, द नेक्स्ट मेथड, द बेस्ट मेथड, in case you just don't know and all of a sudden the landlord is giving you a problem, the ऑफिस पर्सन इज गिविंग यू अ प्रॉब्लम। हम सोचते पता नहीं, मैं अभी अभी ऑफिस में एंटर ही हुई है, अभी तो शुरू किया है मैंने, और क्यों इन लोग सब मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने क्या किया है? तो देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स। सो दो we will try all the other methods, but at the same time very nice is, very better is कि जो भी अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सोल इज स्लीपिंग, क्योंकि जब सोए हुए होते हैं सभी, तब उसका सब कॉन्शियस माइंड अवेक होता है, कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, एंड इन दैट अवेकनिंग स्टेज वॉट एवर थॉट्स आई क्रिएट फॉर द सोल, इट गोज, इट रिसीव्स। और अगर वो वायलेंट है और उसको फील होता है, उसको एक अच्छी फीलिंग आ रही है, आई एम सॉरी, तो उसका पता नहीं उसके अंदर का वो थॉट diminishes, defeats the thoughts, so automatically the feelings चली जाती है। This is the magic forgiveness does in connection to my very strong past। क्योंकि माइनस माइनस का बैलेंस है ना, तो अब इसको प्लस चाहिए टू नलीफाई इट। अगर माइनस में माइनस और हुआ, अब वो बहुत, बॉस मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मैं नई नई आई है, पता नहीं क्यों कंटिन्यूसली मुझे तकलीफ देता जा रहा है, देता जा रहा है। आई डू गुड, आई बी सो सिंसियर, आई एम एक्चुअली डबली ऑनेस्ट, डबली सिंसियर सबसे, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई। अब उस सोल के साथ, अब नाउ इज द चैलेंज हियर, मेरा पास्ट था जो वो प्रेजेंट में आया, लेकिन अभी प्रेजेंट मेरा इतना पावरफुली पॉजिटिव चाहिए, सो दैट नेक्स्ट मिनट का जो फ्यूचर है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाए। So this is the method, forgiveness. So the one method is forgiveness, and then creating a very powerful future when we know कि पता है कि everything what we are linked is making our future also। अब जैसे क्या होता है कि if past and the present are linked, इसका मतलब the last balance sheet and the this year's balance sheet both are linked, right? तो जब both are linked, तो जो लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होगा, वो मेरा इधर कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा। और जब वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इफ इट इज वेरी गुड, आई एम गेटिंग द गुड,
So I am able to enjoy the good. Wonderful. तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं. All are under me. All are obedient. Children are fantastic. Work wise, education wise. There could be very good, beautiful present. But again, there is a risk. क्या रिस्क है? अभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज वॉट एवर द पास्ट इज. So the balance sheet was very good. So I'm getting very good job. I'm getting very good relationship. All are obedient. All are. But मेरा तन भी अच्छा है, मन भी, धन भी अच्छा है. But now this present is the enjoyment, is the result of the past. So I'm using it. So I'm just enjoying it. But at the same time, do I need to create a future? अगर मैंने एंजॉय कर लिया, यूज कर लिया, हो गया, फिर बाद में मेरे फ्यूचर के लिए फिर क्या होगा? मेरे पास कुछ है? एक स्टोरी है. एक गांव में राजा होते थे. तो उस वहां का कॉन्स्टिट्यूशन था कि whoever becomes the king, वो 5 साल तक एंजॉय कर सकता है. He can rule the kingdom. After 5 years, he will be thrown out. He will be taken to a jungle. And वहां बहुत वायलेंट क्रिएचर्स है, एनिमल्स है. And he will be thrown in that place. वहां. And there he will be left to dead. Left to die. That's the constitution. तो पहला राजा आया. He enjoyed. उसने सोचा ठीक है, 5 साल के बाद है ना, अभी तो एंजॉय कर लो, मौज कर लो. अच्छे से मौज किया, सब कुछ किया, एंजॉय किया. 5th ईयर के बाद he was, because constitution है, he was taken away and then thrown there, क्योंकि that is the law. दूसरा राजा आया after the 5 years, after that one. अब वो बहुत डरने लगा, कहीं मेरा ऐसा तो ना हो जाए. राज किंग तो बन गया, लेकिन डरने, साथ में डर भी है. सारा समय डर लगा रहा, और उस डर के कारण कोई अच्छे से कर भी नहीं पाया. और फाइनली, मतलब स्ट्रेस रहता था, एंजाइटी रहती थी, किंगडम भी अच्छा रूल नहीं कर पाया. और फाइनली आफ्टर द 5 years, जब लेके ही जा रहे थे उसको, वहीं अटैक आ गया. तीसरा राजा आया. उसने कहा ठीक है, 5 साल के बाद है ना, 2.5 साल पहले कर लेंगे, 2.5 साल फिर देखेंगे उसका. तो 2.5 साल बहुत एंजॉय किया. 2.5 years. द नेक्स्ट 2.5 years वो थोड़ा उसको वापस टेंशन होने लगा, और टेंशन होने के कारण टेंशन में ही जीता था. And because of that, he couldn't do anything much. And again, when he was taken and thrown, left to die. 4th जो राजा आया, वो बहुत सेंसिबल था. तो उसने राज्य किया, वेरी अच्छे से किया. He won the hearts of everybody. Everyone liked him. He was very, very balanced in his approach, in doing everything, a very balanced, neither too much this side or nor too much that way. So that way, a very beautiful administration. और जब लास्ट में जा रहे थे, तो सब लोग को बहुत फील हुआ कि he should have known this is the fate, and in spite of this he did it. You just don't know what would be the, अब इसको वापस वही हो जाएगा, कितना अच्छा राजा था, एक्सेट्रा. बट व्हेन ही वाज बीइंग टेकन, तो जो ले जा रहे थे नाव में, और रावी बोला पहले आप ऐसे राजा हो जो बिल्कुल डर नहीं रहे हो. व्हाट्स द सीक्रेट?
तो और उसने बताया, जस्ट कम टू दैट प्लेस, आई विल शो यू द सीक्रेट. एंड द मोमेंट दे लैंडेड देयर, दैट प्लेस वाज नो मोर अ जंगल, इट वाज अ ब्यूटीफुल किंगडम. ही टोल्ड, दिस इज, ये मेरे खुशी का राज है. जब मुझे मिला, मैंने उसी समय से एक ब्यूटीफुल, यहाँ का थोड़ा थोड़ा बचा बचा के मैं एक फ्यूचर, मैं एक उस जगह को बहुत अच्छा बना दिया जहां मुझे फ्यूचर में जाना ही है. तो इस कारण मैं अभी भी रूल करूंगा, बाद में भी रूल करूंगा. सो वन वे ऑफ लिविंग, सो जिसमें अंडरस्टैंडिंग. तो अभी भी उसने अपना थोड़ा थोड़ा त्याग किया, बिकॉज ऑब्वियसली द रिसोर्सेज वर द सेम. फाइनेंस तो उतना ही था पहले वाले राजे की तरह. बट व्हाट ही डिड, उसने उसी में से जो बचाया, वो उसने अपना फ्यूचर क्रिएट किया. तो सिमिलरली, वन लाइफ स्टाइल इज, I've got it, this is my fortune, I've got a very good house, very good everything, enjoy it. Yes, you can enjoy it, but you are spending it. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा. तो उसी जीवन के लिए यूज हो रहा है. लेकिन वन वे इज, आई एम डूइंग some kind of renunciation. Whatever fortune I am getting, first of all, I'm not accepting it is me. Whenever I say my, मैंने किया, मुझे मिल रहा है, मेरा भाग्य है, so that ego is created. Fortune is there and the ego is there. But we say that no, it is the power of the supreme, it's not me. So there is no spending, there is no deduction. So you're not accepting yourself in the scene, and at the same time not using it fully for yourself. You have the right to use it fully, आप यूज कर सकते हैं. लेकिन आपने सोचा नहीं, मैं अपने सुख के लिए नहीं यूज करूंगी. लेट मी डू समथिंग गुड अबाउट इट. इफ आई गॉट द रिसोर्सेस, let me use for many people. Let our interest be, my interest are not Indian but international. एक बड़ी सोच रखना है, छोटी सोच नहीं. मैं एंड मेरा, ये छोटी सोच है. मैं और छोटी सोच है. बट यस, whatever I've got, it is my fortune. It is not my fortune, but it is the blessings for everybody, and let me share it as much I can. Reduce my spending, my enjoyment little bit. I'm creating a good future. Because क्या है, simple logic है. आपके पास 5 आम आए and the person told it is just for you. आपने ले लिया, बट आपने सोचा कि why not, आपने एक लिया, आपने सोचा ये दूसरा, ये उसको दे दूं, 4 दूसरे के लिए रखा. अब क्या था, योर 4 का जो फॉर्च्यून है वो बचा हुआ है. So now you created, first of all, you used just 1. So 4 is still pending for you. And at the same time, so they have to again come to you. And most important, the second part is you are getting blessings by giving to them, by sharing to them. उसके अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग्स निकल रही है कि आप कितने अच्छे हो. आपको मिला लेकिन आपने हमें दिया.
ये दो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. सो नाउ द फ्यूचर इज व्हाट? इट वुड बी, इट कुड बी एनी टाइम, इट कुड बी द नेक्स्ट डे. आपके फिर आम आ गए, आपने सोचा अरे कल ही तो मैंने खत्म किया, ये कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि आपका भाग्य बचा था ना 4, वो फिर आएगा. तो therefore, if I give, life is for giving. Life is not just for spending. Spending मतलब ही मैं यूज करती जा रही हूँ, मुझे इतने सारे ड्रेसेस है, इतने सारे, देर आर मेनी थिंग्स, आई एम जस्ट यूजिंग इट. यस, मैंने कमाया है, मैं खाऊंगी. नो वन इज देयर टू स्टॉप मी. इट्स ओके. बट लाइफ इज फॉर गिविंग. तो जितना हम देते हैं, हमारा अकाउंट, हमारा फॉर्च्यून, फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है. सो सिमिलरली इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी मेंटल, स्पिरिचुअल. कि आप बार बार कहेंगे कि नहीं, मुझे झुकना है. आई विल गिव रिस्पेक्ट, आई विल गिव लव. दे आर डू नॉट डू, इट्स ओके. देयर एक्शन, देयर प्रेजेंट, दे आर क्रिएटिंग देयर फ्यूचर. मुझे करना है. सो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम क्रिएटिंग इट. मैं करूंगी नहीं, एंड सपोज आई एम जस्ट सफरिंग ऑफ व्हाट थिंग अदर्स आर डूइंग. दूसरे मेरे लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे, मैं दुखी होती जा रही हूँ. तो आई एम क्रिएटिंग अ फ्यूचर, बिकॉज प्रेजेंट में व्हाट इज द स्टेटस? सॉरो. तो व्हाट विल बी द फ्यूचर? सॉरो. सो इधर द वे, इवन इफ इट्स कमिंग टू मी, आई एम सेटलिंग इट. ओके फाइन, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, मेरा पुराना था. I forgive that person to whatever they have done. It could be to any extent. And और आप क्लियर, इट्स अ वेरी पावरफुल साइंस. यू ट्राइड. हमने अभी अभी कल ही ट्राई किया. समवन वेरी मच स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एंड सिंस सो मेनी डेज आई हैव बीन ट्राइंग. कुछ भी आप क्यों इतने गलत हो, मेरा कोई पास्ट होगा. अभी तो हम मिले भी नहीं हो, हम ज्यादा कोई इंटरेक्शन में भी नहीं आए हैं, बट समथिंग पास्ट होगा, तभी तो मुझे मिल रहा है 100%. सो यू आर नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर what you are doing. I am responsible for what you are doing. Taking that responsibility is called maturity. So therefore, and then I just, throughout the day, in the morning particularly, when the soul, that person is sleeping, try to use this part that time. तो continuously I was just, और हम देख रहे कल इंटरेक्शन हुआ था, उसमें एकदम नरम. आई डिड नथिंग वेरी वायलेंट. तो हाउ दैट सॉफ्टनेस हुआ, हाउ दैट एग्रीमेंट हो गई, इट्स दैट पावर. सो एनी ह्यूमन बीइंग, किसी को भी आप नेगेटिव होके नेगेटिव से टैकल नहीं कर सकते, पॉजिटिव होके ही टैकल कर सकते. Therefore, that is that energy. And third is, so first is forgiveness, second is giving nature, and the third is, third and the most important is meditation. When you are meditating, then तो भी एक बहुत अच्छा मेथड है. forgiveness, second is giving, and third, so the third one is not written here, meditation. So which you don't want to actually, ऐसे आप करके नहीं कर सकते हो, जिनके लिए आप जस्ट, बिकॉज कितने सारे हमारे पास्ट है,
इट कुड बी वेरी ड्रेडफुल, वी डोंट नो, कुछ कुछ आ रहे हैं, पता नहीं और कितने होंगे. एंड व्हेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ दैट इलनेस, हमने सुना ही नहीं इतने अच्छे, और आज ये इस तरह की बीमारी, यू डोंट नो, बिकॉज वो आएगा. उसके लिए मेडिटेशन. इफ आई कैन हैव दैट डीप कनेक्शन एनर्जी, because what is meditation? It is recharging and at the same time it is burning. योग अग्नि कहते हैं. अग्नि मतलब बर्न करना. तो जब हम योग करते हैं ना, तो वॉट एवर दैट अग्नि खाना बनाती भी है और खाना जलाती भी है, जलाने का भी काम करती है. तो योग हमारा फ्यूचर बनाता भी है, और जो भी पास्ट के डीप अकाउंट्स है, that could be destroyed by this connection. That's called the energy, which otherwise I had to otherwise face it, which would have been very difficult for me. आज एक किसी का धक्का लग जाए, आप सुबह सुबह निकले और सोचा कि आज बहुत सब कुछ क्लियर है, मौसम भी अच्छा है, रोड का ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी लेके निकले, और टर्निंग में दूसरी गाड़ी आई, जोरदार हिट की, आपकी मर्सिडीज थी, और 10,000 का खर्चा. अब वो जो 10,000 कौन सा था, जो पिछले जन्म में आपका बाकी था ना. इट कुड बी एनी टाइम, नॉट पिछला जन्म, एनी पास्ट. वो लेकर दैट खर्च करवा के चला गया आपको. सो व्हेन वी हैव टू फेस इंडिविजुअली our energy created, the result of our energy created, it will become a big list. है ना, कितना लिस्ट है? एक दिन में 35 to 40,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. इट्स अ बिग एनर्जी. सो वॉट एवर, एंड वी डिडंट नो अंटिल नाउ, तो हमको किसी ने समझाया भी नहीं है. नो वन टॉट अस, नो वन मेड aware about this. Maybe sometimes our parents must have also not told us in so detail also, but we have come to know. Even if you don't know, you are going in US, left hand drive है, आप कहेंगे sorry I didn't know it, but you still have to pay. Just ignorance will not spare you from the penalty. Ignorance of law is no excuse. It's a law. It has to be, it is a law, it means law. तो if मेरा present जो भी होगा आया है, मुझे फेस तो करना ही पड़ेगा. What if I can do this shortcut method? क्योंकि जब वो आता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है. कुछ बीमारी के रूप में आ जाए, कुछ बिजनेस लॉस के रूप में आ जाए, कभी कुछ हो जाता है घर में. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फेस. So why not try the meditation part? So one is forgiveness, second is giving, and third is meditation. So we'll do this meditation. So what I have to do, I just have to be connected. और जैसे जैसे मेरे को वो बाबा की रेज आती जाएगी, हमको कुछ सोचना नहीं है, वो रेज उसको जलाती जाती है, बट नेचुरल है. इसलिए मेडिटेशन मतलब लाइटनेस. दिस अकाउंट्स जो है ना, वो बहुत हैवीनेस है. So today, for 3-4 minutes, we'll do this meditation. अपने आप को सब बातों से एकदम फ्री करें. मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर एनर्जी, situated in this body, in the center of the forehead.
मैं आत्मा इधर विराजमान हूँ। I am the soul who carries forward everything, the future and the past. I am the king, I am the ruler. So visualizing the point of light in the center of the forehead, I, the point of light, am feeling the qualities. मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ। अब मैं आत्मा going to परम धाम, a world above this skies, just going there, and there is the supreme soul, the supreme energy. I am just near the highest energy of this earth, who has the power to burn all the negative accounts. And now I am taking the energy from the Supreme Soul. उनकी शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। परमात्मा शांति का सागर उनसे पावरफुली डीप पीस की किरणें आती जा रही है। और वो किरणें सारी डीप अकाउंट्स मेरे बर्न कर रहे हैं। It is so powerful, which no one in the earth can do it, except the energy of the Supreme. I am under the most powerful canopy. परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर छत्र छाया की तरह मेरे ऊपर चल रही है। I am always protected. मेरे अंदर जा रही है। इस तरह से अपने आप को पावरफुल करके, एनर्जाइज करके, ओल्ड अकाउंट्स को, नेगेटिव अकाउंट्स को माइनस करके
मैं आत्मा वापस नीचे इस शरीर में आ रही हूँ। ओम शांति। So that was a small practice. So, but if every one of us can take it a routine, these three things, कि every day at least 5 minutes, 10 minutes, this meditation, I'll do that. Let me burn all the old accounts. And second, forgiveness. कुछ भी कोई मेरे से नेगेटिव है, फर्स्ट प्रोटेक्शन, सेकंड नो क्रिएशन मेरे तरफ से, और थर्ड आई एम वेरी सॉरी इंटरनली फॉर दैट सोल। मैं सॉरी कह रही हूँ बस। आई डोंट हैव टू क्रिएट एनी नेगेटिव, आई डोंट हैव टू इवन प्लीज दैट सोल। यू जस्ट क्रिएट दिस थॉट। एक हस्बैंड से प्रॉब्लम थी, वी मेड दैट सोल डू दैट अभ्यास, वाइफ को बोला ये करो, 5 days किया उसने, फीलिंग्स में चेंजेस आने लगी। डिवोर्स में थे, आज 10 साल हो गए, ठीक चल रहा है। द ओनली मेथड इज दिस। कैन वी ऑल डू इट? कर सकते हैं। सो दिस इज द होमवर्क। इजी नो? वेरी डिफिकल्ट? सबको इजी लगता है। अनुष्का, सोनल बहन, पवन भाई, करना, करके देखो, बहुत मजा आएगा। यू आर वेरी लाइट ऑलवेज। आई एम सीइंग द रिजल्ट्स। जिससे भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आई जस्ट डू दैट, नथिंग एल्स। सॉरी। ओके। ओम शांति। Thank you, Didi. Thank you for beautifully summarizing the entire session and giving us the 3 very easy but not so easy solutions, but very powerful. Yes. And thank you everybody else for attending today. So we'll meet the next week. That will be the question and answer session. So please come prepared. Thank you, everyone. Have a nice day. Om Shanti. ओम शांति।